अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले केनाल रोड पर और शहर लाहौर की आम शाहराहों पे क्यों मौजूद होते हैं, इनको कौन मंशियात फ़रोख्त करता है, पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे करती है और अगर कार्रवाई करती है तो कामयाब क्यों नहीं होती, क्यों इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद को आपने नहर किनारे या लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा तो ज़रूर होगा। एक बार टाउन डिवीज़न ने जो कार्रवाई की है उसमें तकरीबन 100 के करीब ऐसे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें से 5 यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कब से मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको मंशियात वहाँ पे आकर फ़रोख्त कौन करता है। पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन कित्थे दा रहने वाला है? मैं भाई अनबाद कलोनी थाने की बैक साइड महल्ला करनालपुरा। अच्छा, लाहौर दा रहने वाला है। काम की करना है? मैं फल फ्रूट बेचना भाई। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ हाँ जी मेरी लाना ਤੇ बच्चे ने ਫਲ ਫਰੂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ? पानी बीमार हुए हैं, ਕੀ ਹੋਇਆ? साह का मसला है। ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? झूठ नहीं मारना, अल्लाह ਨੂੰ जान देनी है। ਸਭ ਨੇ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ। ऐ ही नशा भाई जेड़ा ਕਿਹੜਾ? इत्थे नहर ते जेड़ा विकदा, ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ऐ ही पाउडर जेड़ा विकदा भाई, चर्च पाउडर जो भी बेचदे ने ऐही चीज़ां। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਫਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ? भाई ने एक दुख ही लगा ही होया है, ना करिए तो घर जाके बच्चों नाल लड़िए, बीवी नाल लड़िए, जान नूं चैन नहीं, मच्छी तरह तड़फदा की करिए। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ 30 साल हो गए ने भाई। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 52 साल मेरी उम्र है भाई। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। हाँ की करिए। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 बच्चे ने भाई। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? एक बेटी सी भाई ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਮਾਰਨਾ, 9 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ? ਮਸਲਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ? ਉਹਦੀ ਸੀ ਠਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਣ ਨੂੰ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਭਾਣ ਸੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋਈਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭਾਣ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ, ਖਵਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਉਹ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਭਾਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਵਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਭੈਣ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ 5, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਣ 2 ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਭੈਣਾਂ 2 ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ? ਫਲ ਭਾਣ ਵਿਕ ਜਾਏ ਸ਼ੇਰ ਭਾਣ ਕੋ 500 400 600 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਣ ਫਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਾ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਕਅਪ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਭਾਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ? ਭਾਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, 200 ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਣਾ, 200 ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 400 ਰੁਪਇਆ। ਅਗਰ 400 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਭਾਣ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ? ਜੇ ਆਪ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਣ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਸ ਸਕਰੀਨਰ ਵਾਲੇ ਕੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਭਾਣ। ਅੱਛਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਘਰ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ? ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਬਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਥੱਬੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ?
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸਾ ਆਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਘਾਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 200-400 ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਸੋਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸਵੇਰ 9-10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ 9-10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਆਪ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਛਾ। ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫਜ਼ ਹੁੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਲੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ? ਮਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ 2-3 ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਲਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਫਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰਦੇ ਟੋਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ? ਚੈੱਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਸ਼ਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, तेरा की ना है? हैं जी, ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲ। ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਰ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਚਰਸ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ 1200 ਦੀ, 1000 ਦੀ, 800 ਦੀ, ਅੱਛਾ ਕਦੇ 600 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ 600 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਉਹ ਜਾਂਦੀ? ਜੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਰਸ ਵਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਚਰਸ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ? ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਜੀ ਬਟੂਆ ਖਾ। ਅੱਛਾ, ਬਟੂਏ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਢਾਣ ਗਏ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਧੱਕਾ ਲਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ? ਚਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 300 ਰੁਪਏ। ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਸ ਪੀਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਰਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰਸ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ? ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੂਠਾ ਲਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ? ਇਹ ਖੜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਛਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਪੀੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਹੈ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? वो 20 बार की में भी वो आवाज़ें देती है ना, वो तुमचे साफ करते हैं ना। ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਮਚੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ये इन्होंने मारा भी होटल से, इसको मुझे उठाया कहते वो आज भी साफ रहा। ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? जब वो ऐसे में 2012 में 2007 से लेके फिल्म भी और चर्च का ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, PhD ਕੀਤੀ नशे 'ਚ। फिल्म का था वो, मैंने इलाज करवाया, मेरी बेटियाँ 2। अच्छा, और तो ये तस्वीर पकड़ी है? ये मैं पढ़ रहा था किस पूछे खाना खा के। अच्छा, नमाज पढ़ते हो? आज भी नमाज आती है?
जी मुझे मैं 2 टाइम की नमाज पढ़ता नहीं 2 टाइम में क्या पढ़ते हो नमाज में? हूँ। नमाज में क्या पढ़ते हो? 2 टाइम में मैं नमाज कैसे पढ़ते हैं? फजर की नमाज में कितनी रकात होती हैं? निकाल में 4, अच्छा, और जोहर में जोहर में 7, और असर में असर में है 12, 12 सॉरी हैं? असर के असर दी नहीं पढ़ी कभी नमाज? जोहर की शाम अच्छा, तो नमाज विच पढ़ना की है? स्कूल वाला हुआ दल सुभान अल्लाह मां नहीं कुलू वाला पूरी आती है? जी सुना। अल्लाह हुआ अल्लाह से मतलब मेरी लामी वाला में कुल्लाहुवन अहद अल्लाहु अकबर। अच्छा, कुलू वाला याद की थी ये? ये मैं पढ़ता रहता हूँ। पढ़ते रहते, ये क्यों पढ़ते रहते हो अल्लाह से? 200 मरतबा पढ़ो ना हाँ, तो 70,000 रिश्ते लेके आते हैं। रिजक लेके आते हैं। हाँ जी, वो भी मैं 20 मार के तो तुम आगे नशा लेने चले जाते हो? हाँ, फरिश्ते रिजक लाते हैं तुम्हारे लिए। जिसका पहले मैं पीता था ज़्यादा, अब मैं उस रात को सोने में भी पीता मुझे गले को क्या हुआ? को गाना वाना गाते हो? नहीं, वो 20 मार्केट में ना टोटल मार्केट में वो बर्फ वाला गोला खाया था। गोला खाया था? अच्छा, वो हम तुमचे साफ करते वो पैक करते हाँ, तो इधर आके खाना खा के फिर वापस जाते हैं हम। अच्छा। पहले कितनी दफ़ा पकड़े गए हो? पहले मैं 2012 में पकड़ा गया था, सिर्फ वो हमारा अपना मसला बना था लड़ाई अच्छा, झगड़े का। अच्छा। किस शादी हुई है? मेरी 2 बेटियां कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। खर्चा वगैरह देता हूँ, अच्छा, 1300-1400 रुपये दिहाड़ी लगाता हूँ। ठीक है। साफ सीधी बात है, 500 का पैकेट लेता हूँ, वो मेरा हफ्ता निकलता है क्योंकि रात को एक कौन सा पैकेट होता है? चर्च का? का वो ग्वाल मंडी से लेता हूँ। ग्वाल मंडी किससे लेते हो? वो है चांद भट्ट, चांद भट्ट वो बेचता है? वो बनी उधर बेचते हैं। ओपन बेचते हैं? पुलिस नहीं पकड़ती पुलिस उनको? अब वो पुलिस को कभी देखा नहीं, लेकिन वो यार कहते बताओ हैं, ना, पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको? वो लोग चुपके से बेचते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ ना, सरेआम बेचते हैं। कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा। और हमें कहीं जब जाते हैं तो कहते लेके निकलो निकलो, अच्छा, गाड़ियाँ भी खुद भी बेचते हो आगे? नहीं, हम तो जनाब हमारा 1400 रुपया गुजारा होता, हम जाके अपने मेरी माँ है, मेरा एक साइन बेटा है, ये घड़ी में क्या टाइम हुआ है तुम्हारी? ये मारा इन्होंने तोड़ दी है। तोड़ दी है? जी, कहाँ से ली थी? ये मेरे बेटे ने मुझे दी थी, हसन ने। बेटे ने गिफ्ट किया है? जी, क्योंकि मैं अपने तो बेटे का गिफ्ट तोड़ दिया इन्होंने? उन्होंने कोई बात नहीं, ये किस्मत की है। अच्छा, किस्मत ही ऐसी थी। इसमें कितने अरसे से चर्च पी रहे हो? जैसे मैं भी रहा हूँ 2008 से, 2008 से छोड़ दी नहीं? पता क्या बात, बीवी फोत हुई है, दूसरी उसका काम है? बीवी के काम में चर्च पीते हो? घर से अलावा कोई सगा भाई नहीं है, अच्छा, रात को नींद नहीं आती, मेडिसिन खा नहीं कई लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं होते। सकती। दोस्त है, अच्छा, दोस्त कोई नहीं है? पता क्यों? बच्चे तो हैं ना, बेटियां हैं? हसन दोस्त है मेरा बेटा, जिसका मैं जाके अच्छा, बीवी कैसे फोत हुई? उसका पिता बढ़ गया था। पिता फट गया था? जी, तो उसका इलाज नहीं करवाया था पहले? इलाज कराया था, माँ के घर में गई है, कहीं खाना खाया है, खाना खाते हुए एकदम उठी है, बाप को कहती पानी दो, पानी पीते हुए एकदम गिरी है, तो वो अस्पताल गए थे। तो अच्छा, अच्छा। उसके पित्ते में पहले दर्द होती थी उसको? उसको 1-2 दफा उल्टी आई थी, अच्छा, इलाज नहीं करवाया तो? इलाज करवाया था, नहीं, इलाज करवाते, इलाज करवाया। नशा करते रहे हो, इलाज नहीं करवाया बीवी का? मैंने अपने तो अच्छा, बीवी जब फोत हुई है फिर नशा करना शुरू किया है कि पहले कर दिया था? बीवी से छुपके करता था। अच्छा, तब अच्छा। वो नौजवान थे। अच्छा। साफ सीधी बात है, हर एक में खून होता है, गलती होती है। अच्छा, अच्छा। आस्ता आस्ता सुधरता, लेकिन चलो ठीक हो गया। हाँ भाई, की नाम तेरा? असगर जी। असगर, की नशा करना है? सर जी मैं पाउडर पीना। पाउडर पीना है? हाँ जी कित्थों लेना है? सर जी, ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉਸਮ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆਹੋ, ਉਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 200 ਦਾ 150 ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟੋਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ? ਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਟਨ ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ। ਫੈਸਲ ਟੋਨ ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਘਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ- ਚੜਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਦੀ ਭਰਾ ਦਾ? ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ,
ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ। ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਘਰੋਂ ਮਾਰੇ। ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 500 400 ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਦੀ ਘਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ 200-300 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰੀ ਲਾਣਾ, ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਟੋਨ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਣ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? मैं ये जो शर्ट मेरे को कपड़ा को नहीं है, मैं जो शर्ट की वजह से पा लिया चौक के। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? हैं कित्थों रोड तो ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹ? हैं ਇਹ ਕੀ ऊपर क्या बढ़िया है। ਕੁਰਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? हाँ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मजबूरी तो ये बस ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ? जीती नहीं है। ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? उम्र मेरी साढ़े ਕੀ ਹੈ? 60 साल। 60 61 ਸਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मेरा नाम सैयद शहजाद हुसैन। ਸੈयਦ शहजाद हुसैन। ਸੈयਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ? शहजाद ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? सर जी मैं नशा जरूर करता था, ये नहीं कहता कि हाँ। लेकिन अज 7 दिन हो गए ने कि मैं नशे वाले पासे नहीं गया। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? मैनू 5-6 साल हो गए 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी नहीं शादी। ਸ਼ਾਦੀ नहीं ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? सिर ते कोई भी नहीं सी। ਹੈ? सिर ते कोई भी नहीं सी ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? कि कोई सामने वाला नहीं सी। वाले साहब जेड़े वो कल फोत हो गए। वाले साहब कल फोत हो गए सर। तो सर जी किसी दी बच्ची ने जब तक सिर छपाड़ की जगह ना हो तो किसी दी बच्ची ने बंदा ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਰ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਕੋਈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਸਰ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੇਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਝੂਠ ਬੁਲਾਵੇ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਲਿਆ ਥਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਧੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਨਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੱਡਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ? ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲੋਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਲੋਇਆ ਸ਼ੋਇਆ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਚਾਵਲਾ ਆਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਕੀ 20 ਕਰਨਾ? ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰੀ? ਇਹ ਬਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ, ਕਰਨਾ ਸਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ? ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਫੜਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਿਆ? ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੂੰ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਹੂੰ। मेरा कोरोना कुछ हो गया कि मैं जरूर है रुलना फिर रहा हूँ। जब मेरे से माँ प्यो का सही होगा तो मैं जरूर रहा मैं तो ठीक हूँ। मेरा एक अल्लाह का सुहा कोई भी नहीं, एक मेरे अल्लाह का सहारा है बस। दोनों पहुँची शनाख्ती कार्ड बने हैं? नहीं साथी दोनों चोरा लोग नहीं कटे। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾ? जी ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾ? साथी मैं साथी शुरू तो चला नवाजी साहब ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾ? ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਸੱਚੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਡਾਵੇ। ਹਾਂ ਜੀ बिल्कुल हैं? जी। ये थे जी वो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले वो अफराद जो अब पुलिस की हिरासत में हैं। बहुत सारे बयानात देते हैं कि इनके घर वाले इनके कई दफ़ा इलाज करवा चुके हैं, लेकिन ये फिर दोबारा उसी लानत का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके लवाकिन इनको घरों से निकाल देते हैं, घरों से बाहर आ जाते हैं और ये सड़कों पर बैठकर अपने रोटी रोज़ी कमाने के साथ साथ मंशियात का भी बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। मुतालबा भी करते हैं कि इनको हुकूमत की जानिब से कुछ सरकारी इदारे ऐसे बनाए जाएँ, सरकारी हस्पतालों में इनके लिए इलाज करवाया जाए ताकि ये इस लानत से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। अभी हमने आपको दिखाया कि शहर लाहौर में मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद जो हैं वो किस तरह से पूरे लाहौर में फैले हुए हैं, किस तरह से इनका मंशियात इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है वो भी आपको दिखाया। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस होते रहते हैं, पुलिस भी इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती है। हाल ही में
एक बाल्टन डिवीजन में इनका ऑपरेशन किया गया, इनको गिरफ़्तार भी किया गया, और जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनको शायद उन जराइम पेशा अफराद से मुश्किल तरीक़ाकार इस्तेमाल करके हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि ये अपने आप को ज़ख्मी भी कर लेते हैं। अगर इनको कोई पकड़ने की कोशिश करे तो उसको ज़ख्मी भी कर देते हैं। एसपी पार्टन ऑपरेशंस उस्मान टीपू हैं हमारे साथ। इन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जिसमें सैकड़ों की तादाद में मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद हिरासत में लिए गए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, ये सब कुछ आपको दिखाया। अब इनकी ज़ुबानी भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, पूरा लाहौर जो है मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ भरा हुआ है। अगर सिटी डिवीज़न में जाएं, सदर डिवीज़न में जाएं, कहीं भी हम चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग सड़कों पर या केनाल रोड पर नहीं बैठे होते। आपने एक ऑपरेशन किया, कितने लोगों को पकड़ा और किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनकी गिरफ्तारी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। हमें एक तो आईजी साहब और सीसीपी लाहौर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ पर भी ये ड्रग एडिक्ट्स ने अपनी समाज गाहें बनाई हुई हैं, खा वो नवा कोट के इलाके में हो या मुस्लिम टाउन मोड़ और उसकी विसिनिटी में हो, वी हैव टू रिमूव दैम। इनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई भी करनी है या इन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में शिफ्ट करना है, ताकि यहाँ पर ये लोग, इसमें काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये लोग क्राइम के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। हमने इनसे कल जो हमने ऑपरेशन किया 100 के करीब लोग हमने गिरफ़्तार किए। इसमें रन टाइम के ऊपर मसाइल ये हैं कि ये अपने आप इनसे हम छुरियाँ और ब्लेड भी बरामद हुए हैं। इन्होंने अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। कोई और अगर नॉर्मल रूटीन के अंदर ये बाइक चोरी की वारदातों में भी इन्वॉल्व हैं, ये रिपोर्टेड भी है और वेरीफाइड भी है। ये लोगों से स्नैचिंग भी कर लेते हैं। इस तरह की इनके पास ब्लेड्स हैं, छुरियाँ हैं, इस तरह तो पर्स स्नैचिंग भी कर लेते हैं। तो इनको पकड़ना एक तो हमारे लिए चैलेंज भी था और थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए था कि ये भागते हैं, एक्सीडेंट का सामना हो सकता है, ये अपने आप को डैमेज कर लेते हैं जिससे ये ख़ुद ज़ख्मी हो जाएं और जो मसाइल का हमारे लिए पैदा कर सकता है। और इसमें लेडीज़ भी हैं, इनके कुछ के पास बच्चे भी छोटे इन्होंने रखे हुए हैं। और मतलब अपना ये मौके के ऊपर इन्होंने पुलिस को काफ़ी टफ़ टाइम भी दिया। ये पानी के अंदर भी घुस गए, नहर के अंदर, वहाँ से भी हमने इनको बड़े तरीके से निकाला। ऑल द वे फ्रॉम मुस्लिम टाउन मोड़ से विसिनिटी टिल FC पुल तक और नियर बाय हमने तमाम मॉडल टाउन SP और मैंने दोनों ने हमने मिलकर इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, इनको पकड़ा और इनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ जो एक बैड इंप्रेशन जाता है इलाके के अंदर, एक सोशल ईवल क्रिएट हुआ हुआ है कि इन्होंने समाजगाह बनाया हुआ है मुस्लिम टाउन मोड़ और उसके विसिनिटी वाले एरिया को कि ड्रग एडिक्ट्स बैठे हुए हैं। लोगों के अंदर इंप्रेशन ये जाता है कि शायद इनको कोई भी अथॉरिटी रिमूव नहीं कर रही है। तो पुलिस की डोमेन है, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। हमने वहाँ डेली अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है कि वहाँ बैठ ना सकें और जो वहाँ पर है उनको रिमूव किया जाए। हमें रन टाइम पर मसाइल ये हैं कि ये एक तो बहुत ज़्यादा इनकी सिचुएशन बड़ी वल्नरेबल होती है। ड्रग एडिक्ट्स हैं, इन्होंने टीके लगाए होते हैं, इनके ID कार्ड अवेलेबल नहीं है। कुछ के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए हमें मसला आता है। इनके फिंगरप्रिंट्स भी इनके खिसे होते हैं, हम वहाँ से भी इनको ट्रेस नहीं कर सकते। इनके पीछे फैमिली मेम्बर्स नहीं आते ताकि हम इनका ID कार्ड बनवाएं और वो भी हमारे लिए रन टाइम के मसाइल आते हैं। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हवालात में इनको रखें या जेल वाले भी बाज़ टाइम एट टाइम इनको रिसीव नहीं करते क्योंकि मेडिकल करवाना होता है और मेडिकली ये क्लियर नहीं होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, बट इनको रिमूव भी करना है। एक सोशल स्टिग्मा है पुलिस के ऊपर कि ये यहाँ बैठे हुए हैं और पुलिस एक्ट नहीं कर रही है। हमने डेली डिप्लॉयमेंट की हुई है और वी ट्राइंग टू मेक श्योर कि यहाँ पर ये ना बैठ सकें। और इससे ये वारदातों के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, बाइक चोरी के अंदर। ये वेरीफाइड चीज़ें हैं। हमसे कई ऐसे मिलते हैं जो नशेई होते हैं और साइलेंसर उतार के और डिफरेंट चीज़ें बाइक्स की बाई पार्ट करके बेच देते हैं। ये स्नैचिंग, इनके पास छुरियाँ खुद बरामद हुई। एक दो के पास ऐसी छुरियाँ बड़ी बरामद हुई जिससे शायद गाय की कुर्बानी की जाती है और ये लोगों को गुजरते हुए को मार के उनसे, और पुलिस जाए तो पुलिस को भी हार्म करने की कोशिश करते हैं और एट टाइम्स अगर पुलिस ओवरकम करे तो ख़ुद को डैमेज करने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस के लिए मसाइल पैदा हों। तो सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको फिर भी जॉइंटली और एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। 100 के करीब लोगों को पकड़ा। जो इनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई हो सकती है वी आर डूइंग इट और वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये मुस्लिम टाउन मोड़ और इसका इलाका विसिनिटी में जहाँ पर अक्सर कंप्लेंट आती है कि बैठे हुए हैं, डेली बेसिस के ऊपर इनको वहाँ मॉनिटर किया जाए, वहाँ ना बैठने दिया जाए।
जो हैं सप्लायर्स इनको सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, और जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके खिलाफ टू एन एक्सटेंड जितना पॉसिबल है लीगल कार्रवाई की जा सके। अच्छा उस्मान साहब, आपने जिस तरह से बताया कि जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करके जब इनको हवालात में बंद किया जाता है तो यकीनन थोड़े से मसाइल होते हैं मेडिकली, ये इनके लिए आप लोगों के लिए ख़दशा होता है कि खुदा न खास्ता मंशियात का इस्तेमाल इन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि किसी की डेथ ना हो जाए। अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि पुलिस की हिरासत में मंशियात का इस्तेमाल करने वाला कोई शख्स अगर पकड़ा गया है, चाहे किसी भी जुर्म में हो, तो उसकी डेथ हो जाती है। वो भी सारी चीज़ें आपने बताई। अच्छा, ये वारदातें भी करते हैं जो आपने बताया कि चोरी की वारदातें करते हैं, तो इनके जो रिकॉर्ड हैं, मतलब आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जिस शख्स को आपने पकड़ा है और इसके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, कोई इसके थंब इम्प्रेशन से जो है वो इसकी शनाख्त हो सकती है, तो ये मुश्किल टास्क हो जाता है पुलिस के लिए। बिल्कुल ऐसे दो बातें कहीं, एक तो पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ होना, ये हमारे लिए वी ट्राई आर लेवल बेस्ट कि मेक श्योर करें कि ऐसा ना हो, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और नंबर 2, इनका बिल्कुल CRO में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज इनका आईडी कार्ड नहीं बने हुए, इनके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल घिसे हुए हैं। ये सिचुएशन इनकी बड़ी वल्नरेबल है कि ये इनको पुलिस पकड़ने से अवॉइड करती है कि अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, पुलिस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इनको पकड़ना एट टाइम्स। तो सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए वी प्रोसीड ऑन, हमने रिमूव भी करना है इनको और इस सारे फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखना है, तो बड़े अकॉर्डिंगली वी एक्ट अपॉन। अच्छा, आपने जब इसका ऑपरेशन किया तो 100 के करीब लोग जो हैं आपने गिरफ़्तार किए, तो इनकी तादाद कुछ अंदाज़ा है कि आपके एरिया में या पूरे लाहौर शहर में या कितनी हो गई, हज़ारों में हो गई? नहीं, नॉट इन थाउजेंड्स। मतलब मैं अपने एरिया में बात करूँ या मुस्लिम टाउन मोड की जो मेनली कंप्लेंट आती थी, जहाँ पर मॉडल टाउन डिवीज़न और इकबाल टाउन डिवीज़न जॉइंटली जिनकी बाउंड्रीज लगती हैं, यही 100-150 के करीब लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं। प्लस माइनस हो सकता है, जिनको हमने मोस्टली को कल रिमूव कर दिया। कोई कुछ वेरी फ्यू होंगे जो शायद स्नीक अवे करने के भागने के लिए में कामयाब हुए हों, सबको पकड़ लिया और डेली मॉनिटरिंग दोनों डिवीजन्स की वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, ताकि इनको वहाँ आने ही ना दिया जाए, जो आए उनको पकड़ लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा उस्मान साहब, जब ये आप ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो इनके लवाहिकीन आते हैं, क्या बताते हैं, या कोई इनको छुड़वाने के लिए इनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं? किसी के पीछे कोई भी नहीं आता। अगर फैमिली मेम्बर आएँ तो हम उनका, इन लोगों का भी आईडी कार्ड बनवाने में कामयाब हो जाएं, बिकॉज फैमिली मेम्बर की रिक्वायरमेंट होती है आपने अगर उसका आईडी कार्ड बनाना है, फिर हमारे लिए लीगल कार्रवाई भी आसान हो जाए। बट इनके पीछे कोई लवाहिकीन आते ही नहीं है और इनकी अपनी सिचुएशन जिस तरह मैंने बताया कि अच्छी नहीं होती है, तो ये मसाइल हमें बिल्कुल दरपेश है। अच्छा, और जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बता पाते हैं या बताते हैं कि किन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है, फिर वेरीफाई का प्रोसेस कुछ थोड़ा सा करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं वेरिफिकेशन। मुख्तलिफ लाहौर की विसिनिटी से यहाँ आकर इन्होंने अपनी समाज का बनाई हुई है। ज़्यादातर का ताल्लुक़ लाहौर इसके नियर बाय एरिया से ही है। ये हम वेरीफाई बिल्कुल करते हैं और इनके पीछे लवाहिकीन में से कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनसे अक्सर औक़ात हम भी प्रोग्राम में बातें की हैं। कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा एक चोरी की वारदात या डकैती की वारदात हुई थी मुस्लिम टाउन में। वो थाना इचरा था, जिसमें एक बैग गिरता है और बहुत सारे पैसे उसमें गिरते हैं और ये तकसीम करके तो वहाँ से फ़रार नहीं होते बल्कि वहीं रहते हैं और पकड़े भी जाते हैं। तो इस तरह की वारदातों का भी इंकशाफ होता है जो अनोखी और मुनफिद किस्म की होती है। बिल्कुल, राहगीरों को जिसको ये इजी टारगेट समझते हैं, उनके साथ एट टाइम्स अपने पास जो चाकू या छुरी है उसको दिखा के या उनको डरा के उनसे कुछ स्नैच करने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट होता है। या उसके अलावा बाइक चोरी की वारदात, भीख भी मांगते हैं, क्योंकि अपना जो इनको जिस चीज़ के एडिक्ट होते हैं उसको पूरा करने के लिए ये अपने तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि अपनी एडिक्शन को पूरा कर सकें। अच्छा उस्मान साहब, आपने एक कामयाब ऑपरेशन किया, 100 के करीब लोग आपने हिरासत में लिए, पकड़े, तो जो इनको मंशियात वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कोई उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे या करते रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए? 2 लोग पकड़े गए हैं जो वहाँ पर जो सुरिंजें सप्लाई करते थे नंबर 1, और जो इनको वहाँ ड्रग सप्लाई करते हैं, और भी जो वहाँ पर इनको दिन के ऑड आवर्स के अंदर आके चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं से ही इन्वेस्टिगेट करके, इन्हीं से इंटेरोगेट करके उनका भी पता किया जा रहा है। और उसके अलावा वहाँ पर हमने अपनी डिप्लॉयमेंट राउंड द क्लॉक की हुई है ताकि कोई अगर वहाँ सप्लाई करने आए तो वी गेट टू नो हिम और उसको भी अरेस्ट किया जाए और आगे चीज़ों को असर्टन किया जा सके। ये थे जी SP इकबाल टाउन ऑपरेशन उस्मान टीपू साहब, जिन्होंने हमें मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद के हवाले से काफ़ी तफसीली ब्रीफ किया। इनका ये भी कहना है कि ये लोग
मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम में भी मुलव्विस होते हैं, इनका रिकॉर्ड भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है और ये चाहते हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाएं या इनका रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल किया जाए, लेकिन लवाहिकीन इनके पीछे नहीं आते हैं। शहर भर में काफ़ी ज़्यादा तादाद होगी मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों की, और 100 के करीब, 100 के करीब जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो भी हिरासत में लिए गए। फिर उसके बाद जो इनको मंशियात फ़रोख्त करते हैं या वहाँ पे आके सप्लाई करते थे, तकरीबन 2 के करीब लोग वो भी पकड़े गए। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद को ऑपरेशन पुलिस किस तरह से गिरफ़्तार करती है, किस तरह से गिरफ़्तार करने के बाद इनको हवालात में और जेल में रखा जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये सुन लेते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ुबानी। इसमें यह है कि जैसे आप बता रहे हैं, पूरा शहर ही जी हमारा तो अनफॉर्चुनेटली अब भरा हुआ है। पुलों के नीचे, गलियों में, सिग्नल्स पर बहुत सारे लोग हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसमें से अक्सर जो लोग मंशियात इस्तेमाल करते हैं वो जब ख़रीदते हैं तो ख़ुद कुछ बेचने के लिए ख़रीद लेते हैं, कुछ पर्सनल इस्तेमाल के लिए। इन पर हम क्रैकडाउन मुसलसल कर रहे हैं और हमारी तो यही कोशिश है कि हमारी सड़कें इस लानत से पाक हों। अब उसमें यह है कि जब इन पर पर्चा एक दफ़ा हो जाता है तो इसमें 2-3 मुश्किलें जो हमें आती हैं। सबसे पहले तो अगर किसी का पहले से रिकॉर्ड हो, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम में आ रहा हो कि इस पर पहले पर्चे हुए हुए हैं, तो उस पर हम हैवी अमाउंट का 9C का पर्चा दे देते हैं। जो इनोसेंट हो, या हम ये भी कोशिश करते हैं कि इनमें से जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको हम ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कराएं। इसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारे MOUs साइन हुए हुए हैं। प्रॉब्लम हमें जो आती है वो ये आती है कि FIR रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ लोग फ़िज़िकली इस काबिल नहीं होते कि वो लॉकअप में जाएं या जेल में उनको रखा जाए, और जेल जो हुकाम है वो भी उनको नहीं लेते। उसमें फिर ये है कि पुलिस को फिर अपने ही बलबूते पर उनका इलाज कराना पड़ता है। ना इनकी कोई फैमिली पीछे आती है, ना इनके कोई दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो उनको फॉलो करें। तो सबसे पहला तो मसला ये है कि हमें इस चीज़ का बड़ा ख़तरा होता है कि अगर एक बंदा बहुत सिक है और चाहे उससे जितनी हैवी अमाउंट है वो निकली हो, लेकिन अगर हम उसको लॉकअप में डाल दें, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, वो अपनी उसी मॉर्बिडिटी की वजह से फौत हो जाए, तो वो पुलिस के खाते में आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि फ़िज़िकली ये कैसे हैं पर्चे के बाद, और हम कोशिश करते हैं क्योंकि इलाज की ज़रूरत हो अस्पताल शिफ्ट करा दें। एक हमारा बड़ा रिसोर्स और बड़ी एनर्जी इस चीज़ पे लगती है। उसके बाद फिर जब इनको हम आगे जेल वाला जो सिलसिला है उसमें हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम अपने मुकदमे को स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसमें चेन ऑफ कस्टडी ज़रूर हम मेंटेन रखते हैं। हमारे नारकोटिक के डिफरेंट यूनिट बने हुए हैं जिसमें अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, वो इन केसेस को डील करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं इनको लेकर, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको आगे से बेल ना मिले, कुछ अर्सा ये जेल में रहें, ना सिर्फ सज़ा के तौर पर बल्कि शायद जेल में रहने से इनकी कोई रिहैबिलिटेशन हो सके, क्योंकि हुकूमती तौर पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई अदारा नहीं है जो पुलिस को मिला हो कि हम पकड़ें और उनको वहाँ पे शिफ्ट करा दें। हम इसमें कोशिश में हैं कि कुछ ऐसा सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर या हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम ऐसा कुछ सेटअप कर लें, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जो सेकंड एक चीज़ है कि इनकी हमें आइडेंटिफिकेशन ही इनकी कोई नहीं, नादरा के सिस्टम में इनमें से अक्सर रजिस्टर्ड ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें उनका थंब प्रिंट से, फिंगरप्रिंट से हमें मिल जाए, कि कोई फैमिली ट्री मिल जाए उनका, कि किसी का बाप का, भाई का कोई ID कार्ड बना हो, लेकिन जिनका बे फॉर्म या फैमिली ट्री भी हमें नहीं मिलता, तो उसका फिर हम नए सिरे से हम ID कार्ड अप्लाई करते हैं, और जब तक वो ID कार्ड बन नहीं जाता, जिसमें कुछ 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, तब तक वो हमारे सिस्टम में पेंडेंसी वो हमारी शो होती है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जैसे जेल हुकाम भी शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं लेते, तो ये हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है कि अब उनका हम क्या डिस्पोजल करें। ना उनको हम छोड़ सकते हैं, ना उनको हम इतना लंबा अपने पास रख सकते हैं। तो हम ज़रूर ID कार्ड अप्लाई कर देते हैं, कोशिश करते हैं कोई फैमिली मेम्बर मिल जाए, लेकिन नहीं मिले तो बस यही है कि हम नए सिरे से बनवाते हैं। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले और फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी होती है, ये सब कुछ आपने देखा। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं उनकी राय जो इसके तिब्बी माहिर हैं। उनका क्या कहना है ये भी उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए।
तरह की चीज़ें जो हैं कि जब आप देखते हो कि कोई बंदा एडिक्ट हो जाता है तो उसका ब्रेन जो है वो, यानी उनका दिमाग जो है वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होता है और ड्रग्स के साथ ही काम कर रहा होता है। और समटाइम्स ऐसे लोग जब बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाते हैं तो अपनी उनकी फ़ैसला जो करने की क़ुव्वत है वो भी उस तरह से नहीं होती, यानी वो फ़ैसला जो है वो नहीं कर पाते। ये जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है ये इन अ सेंस ठीक भी है, और अगर इसका एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ तो ये ठीक भी है, बिकॉज़ ड्रग एडिक्ट्स जो कि स्ट्रीट्स पे आपको नज़र आते हैं, ऑफ कोर्स वो सिर्फ ये नहीं करे कि वो ड्रग्स के उसमें शामिल हैं, बहुत सारी और चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जैसे आपने कहा कि इनके पास ब्लेड्स होते हैं, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, यूजुअली ये स्ट्रीट क्राइम्स में हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग नज़र जो हैं वो आते हैं। इसी तरह से ड्रग पुशिंग में जो है इनका बहुत अहम किरदार होता है, यानी ये लोग ड्रग सेलर्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल के ऊपर ड्रग सेलिंग भी हो रही होती है। फिर बैगिंग, इनकी यही लोग बैगिंग में भी इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं समटाइम्स, क्योंकि देखा ये गया है कि वो लोग जो कि नशा बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं उनमें HIV एंड एड्स जो है ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैल भी रहा है, उनमें HIV एड्स के होने के ख़तरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि उनमें ही सिर्फ होता है, मगर ये मैं ज़रूर कह रही हूँ कि उनमें ख़तरात जो हैं HIV एड्स के होने के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से जो लोग हमें बिल्कुल सड़कों पे लावारिस पड़े हुए नज़र आते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जो कुछ ना कुछ ग्रो जो है उनको अपने इस्तेमाल में कहीं ना कहीं रखे हुए होते हैं, बिकॉज़ बिल्कुल बेयारो मददगार जो है इस नेटवर्क में यूजुअली कम ही लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जिनको आप कहेंगे कि जिनको शायद शिज़ोफ्रेनिया हो चुका हुआ है या वो मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि वो अब अपनी चीज़ों को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। तो वो हो सकता है कि किसी हद तक जो लावारिस हमें नज़र आए, अदरवाइज़ ये लोग ज़्यादातर नेटवर्किंग में ही होते हैं और कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई ताल्लुक़ जो है वो ज़रूर होता है। इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन एक अच्छा स्टेप इसलिए हो सकता है कि बेबी अगर आप इनको एक अच्छे थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ इनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें तो आप एक बहुत अच्छा वर्क फोर्स जो है वो अपना तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए यकीनी तौर पे आपको एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें आप सिर्फ इनको मुजरम समझ के जो है वो मत ट्रीट कीजिए, आप इनको मरीज़ समझ के अगर ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे आप इनको हेल्प कर सकते हैं। और उसमें फिर आपको एक प्रॉपर टीम जो है वो चाहिए होती है कि जो इनके ड्रग को भी मैनेज करे और उसके साथ साथ जो इनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनको भी मैनेज कर रहे हैं। किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, बिकॉज ड्रग के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं, आप अपनी सेंसेस में ही नहीं हो सकते, और क्योंकि आप सड़क पे पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता, आपकी हाइजीन इतनी ख़राब है, आपको हेल्थ हैज़र्ड्स इतने ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, फिर आपकी पुअर डाइट होती है, खाना पीना आपका उस तरह से प्रॉपर नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं चोरी चकारी में जैसे जो है ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉकेट पिकिंग और स्ट्रीट क्राइम्स में इन चीज़ों यानी अपनी ड्रग को पूरा करने के लिए इनको ये सारी चीज़ें करना पड़ रही होती हैं। तो बच्चे ऑफकोर्स जब इस तरह का कोई देखेंगे तो वो खौफज़दा बिल्कुल होते हैं कि ये क्या है, और समटाइम्स कुछ बच्चे इनसे जो है वो जब इनको ड्रग करते हुए देखते होंगे तो वो इनको इनसे इन्फ्लुएंस भी होते होंगे और फिर उस तरह की चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश भी करते होंगे, ट्राई भी करते होंगे। सो और आम लोगों को जो इनसे ख़तरा है ऑफकोर्स अगर यानी हो सकता है चोरी का ही ख़तरा हो सकता है, मारने का तशद्दुद का जो है वो ख़तरा हो सकता है कि एकदम से जो है लड़ाई हो जाए दो लोगों के बीच में, और फिर इनको ख़तरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं चलते चलते एकदम से रास्ते में और एक्सीडेंट्स वगैरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। सो ये सारे ख़तरात जो हैं वो हो सकते हैं ड्रग के इन्फ्लुएंस में इंसान की अपनी ज़िंदगी को, और फिर दूसरों को भी उससे काफ़ी सारे ख़तरात जो हैं वो हो सकते हैं। इन एक्चुअल तो अगर जब आप ड्रग रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल लोग जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं, एक अच्छा वर्क फोर्स भी आपका तैयार हो सकता है, मगर प्रोवाइडेड कि किस तरह का आप जो है इनको रिहैब कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप सिखा रहे हैं। सिर्फ आप ड्रग को जो है वो इनको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, यानी सिर्फ ड्रग को बॉडी से निकाल रहे हैं, या फिर आगे भी इनको लाइफ स्किल्स की तरफ भी लेके आ रहे हैं, कोई काम सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लोग जो है बेहतर शहरी बन सकते हैं अगर इनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट और फिर उसी तरह से फाइनेंसेस जो इनको दिए जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर बहुत सारे ड्रग अब्यूज़र्स जब खुद से नशा नहीं छोड़ना चाहते तो उनको फिर राह रास्त के ऊपर लाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया और मिलवाया कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद किस तरह से सड़कों पर पड़े होते हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं और उनका नशा करने की आदत
क्यों ख़त्म नहीं होती, पुलिस जो कार्रवाई करती है उस पर क्या एक्शन होता है और इन्वेस्टिगेशन वाले क्या कर पाते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।